Good afternoon, students. Am I audible to all? Yes. Kindly reply. Am I audible? Yes. Once again, good afternoon to all. Please reply. Am I audible? Ronak, Abhishek, Himanshu, Hridesh, Himanshu Pundir. Please reply whether I am audible or not. Yes, sir, audible. Okay. So how are you all? Yes, Ronak. Fine, sir. So in the power plant engineering topic subject, so far we have covered unit 1 and unit 2. So we will now start a new topic. Okay. We will start the nuclear power plant. That is your unit 3 in the sequence. And unit 3 2, I will provide you the assignment and the MCQs for this. Okay. Anyone has any doubt so far in the previous topics we have covered, they can send your doubts in the group. Okay. So please reply. Yes. Yes, Abhishek Kumar. Oh. ठीक तो हो रही है आपको? सर अभी नहीं हो रही। हाँ वो गई। Okay. हो गई सर। Today we will start your new topic, that is your power plant, nuclear power plant specifically. So anyone has any idea about the nuclear plant? Any idea? What is nuclear power plant? Yes, Abhishek, Ronak. No one has any idea? Yes. Intelligent students. Ronak. Sir, idea नहीं. So, as per your syllabus, the unit 3 says the basics of nuclear power energy conversion and your layout and the subsystems of nuclear power plant, boiling water reactor, that is BWR,
and the pressure water reactor is PWR. Canjo reactor, pressurized heavy water reactor PHWR, fast breeder reactors FBR, gas cooled water and liquid metal cooled reactors, safety measures for nuclear power plants. So these are the topics that need to be covered under unit 3. Okay, so we will be covering each topic one by one in detail. So starting with the basics of energy conversion in a nuclear power plant. अगर तो हम बात करते हैं energy conversion की, and this is a nuclear power plant. So if we dissociate the words, that is nuclear power and plant. So power plant, you all understand, the power plant is something, a set of components that are arranged in a sequence so that energy can be achieved or converted from one form to another. Basically, we are converting the chemical energy. If we talk about the last classes, we have discussed about the coal power plant and the gas power plant, in which we are converting the coal energy to the heat energy, and that heat energy directly to the mechanical energy, and the mechanical energy then into the electrical energy. In the similar fashion, we are doing these processes in the sequence. Just अगर हम कोयले को बाहर निकाल के हम गैस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और द प्लांट इज ऑपरेटिंग ऑन द ब्रेटन साइकिल, तो जो हमें एनर्जी मिल रही है जिस प्लांट से, दैट वी कॉल इट एज अ गैस पावर. नाउ वी हैव चेंज द टाइप ऑफ फ्यूल हियर इटसेल्फ. हमने न्यूक्लियर फ्यूल लिया है. इट मींस न्यूक्लियर एनर्जी, जो बॉन्ड टूटने की वजह से जो हमारे पास एनर्जी मिलती है, दैट एटॉमिक एनर्जी जो हमें मिल रही है, that we are utilizing for converting it into another form of energy, and that to mechanical and mechanical to electrical. So basically, अगर हम बात करते हैं nuclear power plant की, then the raw material for the fuel for that plant is basically your uranium. And अगर मैं स्पेसिफिकली करूं तो एनरिच्ड यूरेनियम, मतलब जो यूरेनियम हमें ओर से मिलता है, उसको हम डायरेक्टली अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते. वी हैव टू एनरिच इट, वी हैव टू मेक इट suitable for the fission reaction. We will discuss the two type of reactions taking place, the fission and the fusion, और हम क्यों प्रेफर करते हैं fission को, fusion क्यों नहीं करते, we will discuss. So this was a brief about how the nuclear power plant is working. So any doubt so far? That we will move forward and we'll discuss some basic points in nuclear power plant. As the diagram shows, you can clearly see this is your reactor. This is your nuclear reactor. Okay. ये आपका जो है, ये दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर. इसके अंदर यूरेनियम होता है, ठीक है. एंड दीज आर द कंट्रोल नोड्स मेड अप ऑफ कैडमियम. अब कंट्रोल नोड्स का क्या काम है वो भी हम देखेंगे आगे क्या है. बट बेसिकली जो है हमारा फ्यूल योर यूरेनियम इज यूज्ड, जो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं. एंड नाउ यू कैन सी द टू पाइप्स आर गोइंग थ्रू योर रिएक्टर चैम्बर. यहाँ से हमने जो है वाटर, ये जो हमारे पास होता है कूलिंग वाटर होता है अलग से, इसको हम ड्यूट्रियम बोलते हैं, जो है इसको हम यहाँ से फ्लो कराते हैं. इसका भी रीजन है कि हम इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में हम वाटर को ही क्यों नहीं फ्लो करा देते इस चैम्बर में. यू कैन सी दिस, कि हमारे पास जो लूप है, इसके अंदर से हॉट फ्लूइड्स यहाँ से मूव कर रहा है, जो कोर को कूल कर रहा है आपकी. एंड देन यहाँ से जो है वाटर इज बॉइलिंग and it's converting into steam, and then steam is taken to the steam turbine. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस कि हमने ये ट्यूब क्यों ली, हमने डायरेक्टली वाटर को यहाँ से क्यों नहीं इसमें फ्लो करा दिया. क्वेश्चन आ रहा है क्या नहीं आ रहा? यस. तो रीजन इसका है कि कंटेमिनेशन, जो आपका रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन है जो आपका, वो हमारे यहाँ पे जो वाटर है उसके साथ कंबाइन ना हो. अगर यहाँ होगा then it will lead to leakage of your radioactive material.
और रेडियो एक्टिव जो आपके पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ मिलके टरबाइन के साथ, और टरबाइन के साथ कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये आपका जो कंडेंसर है इसमें, और इससे टू द कूलिंग वाटर जो हमारी कोई भी यहाँ पे बॉडी होगी वहाँ पे लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसको अलग कॉइल में रखते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? जब हम बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम जो है हमारे पास 3 आइसोटोप्स में अवेलेबल है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। अब ये आइसोटोप्स क्या है? व्हाट इज आइसोटोप? तो इन एनी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दिस इज योर केमिस्ट्री जो कहती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे, तभी आपका इक्विलिब्रियम होगा इन एटम। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? यस। Yes, students, please reply. Are you there? Yes, Ronak, Abhishek. Yes, sir. सारे जवाब क्यों नहीं देते आप? अभिषेक कुमार दुबे, यस सर। तो समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो? यस सर। सर मेरा नेट नहीं चल रहा। मैं ये कह रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सही है कि गलत है स्टेटमेंट? यस। यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, मींस नेट चार्ज इन एटम शुड बी जीरो, तभी तो स्टेबल होगा। अगर आपके प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, देन चार्ज इंस्टेबिलिटी विल कम इनटू योर एटम, और वहां पे आपकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, न्यूट्रल स्टेट है, दैट विल नॉट बी लास्ट लॉन्ग। लेकिन आइसोटोप फिर क्या मतलब है आइसोटोप का? व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोटोप? तो जब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, मींस आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो बराबर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक कंपोनेंट उसके अंदर और होता है, दैट इज न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, दैट मींस दैट जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन होता है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, जो हमारा H1 है, it does not have any neutron, one proton and one electron, that is hydrogen। बट जब हमारे पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आ जाता है, that is your deuterium, उसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम, उसको बोलते हैं H2, that is heavy hydrogen। now similarly एक दूसरा इसका थर्ड आइसोटोप है हाइड्रोजन का, that is tritium, that is having 2 neutrons and 1 proton। So if you see the fashion, the number of protons are same, but the number of neutrons are different in all the 3 components. So these 3 elements can be grouped in a single uh, subtitle, that is isotope of hydrogen, that is neutron नहीं है जिसमें, तो हम सिंपल बोलेंगे हाइड्रोजन। The next your heavy hydrogen जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, that is deuterium, and third one is your tritium। ओके, यहाँ तक समझ में आया? I think the concept of isotopes are clear to you all now। yes। please reply बच्चे। I am recovering from
dengue fever. Still, I'm taking class, and you people are not responding to me. Why are not responding? Am I asking something special? Yes, yes, Ronak, Abhishek Kumar Dubey, Ankit Sharma. If you have any problem, just ask me. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, you can ask me. Sir, RSM. Reply करो बच्चे. I need your permissions before proceeding. आपके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं. मैंने तो लिया है. Yes. Yes, Pawan Negi. Pawan. पवन सुन पा रहे हैं? तो जो बच्चा रिप्लाई नहीं देगा वो क्लास से बाहर. क्लियर है? ओके. तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्किंग की, हम वर्किंग से स्टार्ट करते हैं. इट विल बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड कि पहले प्लांट काम कैसे कर रहा है, देन टू द कंपोनेंट्स वी आर यूजिंग इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट. Nuclear power plant is a similar way as a thermal power plant. The difference between the two is the fuel they use to heat the water in the boiler. जैसे कि मैंने बताया, जैसे आप मटेरियल जो यूज करते हैं, आपका फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, जैसे कोयला यूज कर रहे हैं आपके स्टीम पावर प्लांट में, गैस इन योर कोल पावर गैस पावर प्लांट. सिमिलरली फैशन यहाँ पे आप कोई ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हैं जो कि आपके रेडियो डीके कर रहा है. The energy is being utilized because of the breaking of the bonds between your nuclear atoms. Okay, so atomic energy is being utilized for the conversion of your electricity. Inside a nuclear power station, energy is being released by the nuclear fission in the core of the reactor. Reactor का जहाँ पर जो ये fission reaction हो रहा है, that is core. The temperature बहुत high होता है, then we are circulating the cooling fluid from that the chamber, and that the fluid heated है वो उसको हम नीचे लेके जाते हैं to the boiler for conversion of steam. अगर हम बात करें your uranium, 1 kg of uranium 235, this is the most fissile material isotope of the uranium जो हम यूज करते हैं nuclear power plant में. The energy of fission reaction is very efficient, can produce as much energy as the burning of 4,500 tons of high grade quality of coal or 2,000 tons of oil. Okay. So this is the pattern how the chain reaction is taking place and the fission chain reaction taking place in your nuclear power plant. This is your atom of your uranium 235 nucleus, and then a neutron is being energized, and with a very high velocity it's tried to this U235 nucleus, that it breaks it into two components. The one is your barium and another one is your krypton.
So these are the byproducts of your nuclear fission reaction. Along with two components, the barium and the krypton, 3 additional neutrons are also produced. So these neutrons will hit another nucleus or the atom of your uranium-235 and this similar fashion continues. लेकिन क्या होता है जब ये 3 न्यूट्रॉन्स जाके हिट करेंगे तो 3 6 में कन्वर्ट होंगे और 6 फिर जाके और फर्दर कन्वर्ट होंगे, then it will lead to an uncontrolled chain reaction, and that uncontrolled chain reaction will lead to very high amount of heat being released in a very short duration of a time, जो कि हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो इतनी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा एनर्जी अब निकलेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी द न्यूक्लियर बॉम्ब. So this fission reaction, uncontrolled fission reaction is taking place in your nuclear bomb. लेकिन हमें इतनी हाई एनर्जी, इतनी हाई अमाउंट में हाई डेंसिटी एनर्जी शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए नहीं चाहिए, हमें धीरे धीरे इसको यूटिलाइज करना है. तो फॉर दैट वी गो फॉर द कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. तो इसको कंट्रोल कैसे करें? वी हैव टू कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड. कैसे कर सकते हैं? ये एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करता है, 2 बायो प्रोडक्ट्स बनाता है, 3 न्यूट्रॉन एडिशनल देता है, ये 3 फिर 3 एटम्स को स्ट्राइक करेंगे. इन सिमिलर फैशन ये चलता रहेगा. तो हम यहाँ पे हमारे पास जो है न्यूट्रॉन्स हैं, अगर इनकी जो नंबर्स हैं इनको रेस्ट्रिक्ट कर दें, देन इट विल लीड टू ये कंट्रोल्ड रिएक्शन, चेन रिएक्शन. So this is achieved by using control rods, that is cadmium control rods, that absorbs the additional number of neutrons in your chain reaction. Getting my point? Is it clear? The fission reaction is clear to all? Yes. Yes, Pavan Negi. Shaker. Shaker. Himanshu. Yes. ये सारे बच्चे कहाँ हैं? आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है. यस रौनक, हिमांशु. Yes, sir. ये बच्चे क्यों नहीं जवाब यहीं दे पर रहे है हैं? सर हम. आप अपने कैमरेज ऑन कीजिए. आई वांट टू सी यू. टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन. After so many days I am taking class and you are not attentive in your class. I am putting so much effort in. कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ क्या मैं इस सब्जेक्ट से जो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या कुछ और पढ़ना चाह रहे हो? जो आपके सिलेबस में है मैं तो वही पढ़ाऊंगा. ओके. So fission reaction is clear to all? Yes, Ronak. Yes, sir. बताएंगे आप मुझे फिशन रिएक्शन में क्या होता है? सर इसमें यूरेनियम सर की बोmbardment होती है यूरेनियम की. ओके. फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में. ओके. ओके. So it is a controlled or uncontrolled? ये सर अनकंट्रोल्ड होता है. नहीं, जो हम पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है? वो सर कंट्रोल्ड होता है. वो अनकंट्रोल्ड क्यों नहीं है? सर लिमिटेड अमाउंट में यूज करते हैं सर उसका, यूरेनियम को. वो धीरे धीरे हम यूजिंग, वो डिके हम धीरे धीरे कर रहे हैं, सडनली हमें डिके नहीं करना है. ओके. तो अगर मैं बात करूं इसकी, जब
तो इसमें से हमारे पास दो तो पिगमेंट्स बनते ही हैं, एक क्रिप्टन है एंड आपका दूसरा है बैरियम। इसके साथ साथ आपके गामा रेडिएशन भी प्रोड्यूस होते हैं। अब रेडिएशन किस किस तरह के होते हैं और रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी ओरिजिनली जो क्या है, यह फेनोमेना है, इज कन्फाइंड ऑलमोस्ट एंटायर टू द हैवीएस्ट एलिमेंट्स। जो आपके पीरियोडिक टेबल में 83 to 106 तो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ऑल आर रेडियो एक्टिव। दैट मीन्स यूरेनियम, पोलिनियम, रेडियम, रेडॉन, आयनियम, थोरियम, एक्टिनियम, mesothorium, ये जितने भी हैं, these are your radioactive materials. The phenomena of spontaneous emission of powerful radiation exhibited by a heavy element is called radioactivity. अब ये तीन तरह के जो रेडिएशंस हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट योर अल्फा, सेकंड योर बीटा रेडिएशन एंड थर्ड योर गामा रेडिएशन। तो अल्फा अगर कहें तो दीज आर द वीक फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ज़्यादा इनकी एनर्जी नहीं होती है। They can easily be stopped by just placing 4-5 sheets of paper. वो पेपर की शीट को भी निकाल नहीं पाते। Then comes your beta radiation. It's much more powerful than your alpha radiation. And last your gamma radiation, third one. The gamma radiation is very powerful. और बहुत सारी कंट्रीज तो गामा रेडिएशन को यहाँ तक बिलीव करती हैं, दे आर वर्किंग ऑन द गामा रेडिएशन बॉम्ब्स, कि आप कहीं किसी भी कंट्री में आप गामा रेडिएशन का बॉम्ब छोड़ दीजिए जो सिर्फ गामा रेडिएशन रिलीज करता हो, नथिंग एल्स, ना आपकी एनर्जी है, ना आपका कोई गैसेस फॉर्म में कोई और पॉइजनस गैस है, जस्ट गामा रेडिएशन। वो कुछ नहीं करेगा, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको मार देगा गामा रेडिएशन। दैट मच लीक एंड एवरीथिंग द आपका एसेट्स जितने भी हैं, बिल्डिंग्स हैं, आपके पास मशीनरी है, वो बिल्कुल वैसी रहेगी। आप वॉरफेयर में अगर बात करें, आपके पास टैंक, आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके पास व्हीकल्स हैं जो आर्म व्हीकल्स होते हैं, उनको कोई डैमेज नहीं होगा, बस ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएगी। दीज आर वेरी मच पावरफुल रेडिएशन। तो रेडियो एक्टिविटी आप इंड्यूस भी कर सकते हैं और नेचुरली भी होती है। जो मैंने एलिमेंट्स आपको बताए हैं, दीज आर नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो ये नेचुरली ये वाले आपके पार्टिकल्स को रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, तो आपका कोबाल्ट होता है, इसमें कोबाल्ट 16 यूज फॉर योर कैंसर ट्रीटमेंट, जो रेडिएशन होता है आपने सुना हो तो, इसमें हम यूज करते हैं कोबाल्ट 60 आइसोटोप फॉर दैट इज रेडियो एक्टिव मटीरियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स जो रेडियो थेरेपी उनको देते हैं। ओके, this is all about we discuss the fission reaction. Now another reaction जो है that is fusion reaction. Fusion reaction में हम क्या कर रहे हैं, we are breaking one element into two and the energy is released after, जब वो टूटता है, उसके bonds टूटते हैं दो components में, वो dissociate होता है, then great amount of energy is released. Similarly अगर हम दो छोटे पार्टिकल्स को, लाइटर पार्टिकल्स को अगर हम कंबाइन करें तो कुछ एनर्जी तब भी निकलेगी, बट वो अचीव कर पाना इट्स नॉट एन इजी टास्क। ओके, तो फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है? यस, वो फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है इज much more than the energy in the fission reaction. लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, then why not we are use the fission reaction? फ्यूजन रिएक्शन हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? why we are not using फ्यूजन? तो उसको जो अचीव करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज वेरी हाई। ओके, फ्यूजन रिएक्शन आपका सन में हो रहा है। सन जो है आपका इज अ स्टार। यस, दिस इज द स्टार। आपको जानते हैं सन इज अ स्टार? यस, यस तो यस सर। जब उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से क्या होता है,
जो लाइटर पार्टिकल्स हैं आपके हाइड्रोजन एंड हीलियम से कंबाइन, वो कंबाइन होते हैं और एक हैवियर मॉलिक्यूल जो है बनाते हैं, और उसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज। और वो एनर्जी जो है आपको मिलती है, जो आप देखते हो, दैट इज इंफ्रारेड एंड सॉरी इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। उसके साथ काफी कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, बहुत सारी और रेडिएशन है जो हमारी ओजोन लेयर अब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन जो हमें मेजरली मिलता है दैट इज योर विजिबल लाइट एंड सम फॉर्म ऑफ योर इंफ्रारेड रेडिएशन, जो आपको हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है आपकी अर्थ सरफेस। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं इमेज से आपको देखने मिलता है। This is how the tritium and deuterium, the fusion reaction is taking place and converting into the helium. That means hydrogen is converting into helium and helium is converting into the hydrogen is converting to helium and helium to the hydrogen. This process is taking place repeatedly in the sun, and this is the fusion reaction. In very high energy, very high amount of energy is being released during this operation. लेकिन इसको अचीव कर पाना on Earth's surface is itself a very big challenge, because the amount of energy required to initiate this process is very very high. ठीक है, और दूसरा इसको कंट्रोल कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अभी कुछ कंट्रीज एक उन्होंने सेटअप कुछ बनाया है टू कंट्रोल विद इलेक्ट्रो मैग्नेटिकली कंट्रोल करने के लिए इस सिस्टम को, बिकॉज हमारे पास मटेरियल नहीं है इतनी हाई एनर्जी और इतने हाई टेम्परेचर को झेलने के लिए, जो में चाहिए फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए। ओके, so now we will go one by one in this slide. The uranium exists as an isotope in the form of U-235 with an unstable isotope, radioactive. When the nucleus of an atom of uranium is split, the neutron release hit another atom and split them in turn. वो continuously आपको same reaction होता रहेगा. More energy is released each time another atom splits. This is called a chain reaction. Okay, this is how it's taking place. This is your original form of uranium nucleus present as a neutron with a very high velocity strikes it. When this neutron strikes it, it converts into two byproducts of this present reaction and three neutrons simultaneously. These neutrons in turn hit another neutrons present in the proximity and the chain reaction continues. और हर बार जब ये बॉन्ड टूटता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं आपकी स्टीम बनाने के लिए, और फिर तो आपका प्रोसेस सेम ही है जो आपने पूरी प्लांट में करा। दिस इज हाउ द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। यूरेनियम 235 यही सबसे बेस्ट आपका यूरेनियम आइसोटोप है जो हमें काफ़ी क्लीन एनर्जी देता है, और जिसका जो एनरिचमेंट प्रोसेस कर पाना भी काफ़ी ईजियर है। तो हैवी न्यूक्लियर मीन्स अ वेरी बिग पार्ट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। जब उसको हम तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। नाउ यू कैन सी द एनर्जी इज रिलीज्ड when this uranium splits into crystal and the barium. So these are the two byproducts of your nuclear fission reaction. Along with it, the neutrons are also, additional neutrons are also produced. So to control this chain reaction, we use control laws that absorb additional amounts of neutrons present in the process. After fission reaction की अगर हम इससे बात करें equation की, which is a process of splitting up of nucleus of fissionable material like uranium into two or more fragments with the release of enormous amounts of energy. A nucleus जो है आपका uranium 235 combined with a high energy neutron देखो एक strike किया and the barium and krypton are formed together with 2.5 neutrons और बना और 200
mega electron volt of energy, very very high amount of energy is released. Mega means 10 raised to the power 6 electron volt of energy. It is itself very high energy. The neutron produced are very fast and can be made to fission another nucleus. जो हम पहला न्यूट्रॉन इनिशिएट करा के देते हैं हम मैकेनिकली उसको फोर्स कराते हैं, लेकिन जब वो उसको हिट करने के बाद जब ब्रेक होते हैं कंपोनेंट्स में और जो हमारे न्यूक्लियस बनते हैं वो अगले जो न्यूक्लियस को हिट कर रहे हैं उनके पास काफी हाई एनर्जी होती है, तो वो स्प्लिट कर देते हैं, उनको हमें मैकेनिकली प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है न्यूट्रॉन। आउट ऑफ 2.5 न्यूट्रॉन released and neutron is used to sustain the chain reaction. सिर्फ एक ही उसको रखते हैं, बाकी को absorb करा लेते हैं, ठीक है। तो 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power 19 joule और 1 electron volt is 10 to the power 6 electron volt. Okay. No, so no need to go into such details. So what is the velocity of the neutron? Okay, that is just for your general awareness. Nobody will going to ask you the velocity. Okay, just go through it so that you can have idea of the how high the velocity is. That is 1.5 into 10 to the power 7 meters per second. Very very high velocity. Okay, so we will keep this topic आज हम यहीं पर रखेंगे इसको. We will discuss it later on in your next class. Okay. Yes. किसी को कोई और डाउट है तो बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आया है अच्छे से? One student is asking me, sir, I got disconnected. Please allow me. ये कौन भेज रहा था? कोई तो डिस्कनेक्ट हुआ है। Yes. कौन बच्चा है ये? हिमांशु है? Yes. बाकी बच्चे क्लास में क्यों नहीं आए? Yes, it is. कितने बच्चे क्लास में हैं मॉर्निंग से? Yes. Hello. Am I audible? यस सर। कितने बच्चे ले रहे हैं सुबह से क्लास? तो ज्यादा थे? नहीं नहीं सर, ज्यादा ले रहे थे। फिर क्लास में क्यों नहीं आए यार? सर पता नहीं था टाइम उनको। नहीं, मैसेज तो मैंने दिया था, कम से कम 20-25 मिनट पहले भेज दिया था। सर सबको लगा होगा सिंधु सर की लास्ट क्लास है, कुछ दिनों से लग नहीं रही आपकी, इसलिए। और मेरी तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, तो अभी भी मेरी सर तबीयत इसलिए खराब। सबको एकदम से आपने भेजा होगा, सबने नेट बंद कर दिया होगा। हाँ, वो क्या है ना, बच्चों का सिलेबस पे पीछे हो जाएगा आपका। ओके, वी हैव टू कीप द पेस, टाइम के साथ हमें सिलेबस भी कवर कराना है। हम भी परेशान हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे दिन भर देखना पड़ता है लिंक कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। नहीं, मैं क्लास लेता हूँ नेट तो मैं ऑन। मॉर्निंग में भेज देता हूँ। हाँ सर वो तो है, लेकिन आज नहीं भेजा ना। आज मुझे था नहीं ना कि मैं ले पाऊंगा क्लास में, फिर मैंने हिम्मत करके आज की है क्लास, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं सर, इसीलिए नहीं आए सर बच्चे। कोई बात नहीं, उनको इन्फॉर्म कर देना। आई विल ठीक मैनेज है के सर। मैं क्लासेस लूंगा धीरे धीरे, आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा फिर। ओके, यस, यस शेखर।